Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Zaida Parveen, PhD Special Education and working as Assistant Professor at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Visually Impaired Children, and this course is from Masters of Special Education with an area of specialization visual impairment. The course code is SPED 4137 and this is a 3 credit hours course. Today we will discuss a few more uses and something more about technology in mathematics education. As you remember, we have completed in our previous lecture about general uses of technology in mathematics education, and today we will discuss a bit about history of technology use in mathematics education and its advantages and disadvantages. In our previous lecture we have discussed that how literature supports the use of technology in teaching of mathematics. There is an article describing about adding technology to geometry improves opportunities to learn, and then we have also discussed about more one other article, that is digital teaching aids make mathematics fun. Then we discussed about that how Jean Piaget is advocating the use of technology in mathematics, and few other authors also has advocated use of technology in mathematics. Then we have discussed that technology provides new ways of learning, that the basic goal of use of technology in mathematics is to construct knowledge and develop 21st century skills. Then we discussed 4 basic tools of teaching, like learning technology use, collaboration, presentation and evaluation. Then there are different websites which can be accessed when we are teaching mathematics to primary grades and or for the children of school age. Then we have discussed that how can a teacher use websites for teaching, and in today's lecture we will discuss about different softwares which can be used in teaching of mathematics to children with disabilities. Here are few softwares enlisted which can be used, like graphic calculators, dynamic graphing tools like GeoGebra, dynamic geometry tools, Sketchpad, etc. Then Microsoft Excel and spreadsheets. Next one is MathLab. Next is Microsoft Mathematics. So all these softwares can be used successfully when we are teaching mathematics to children with disabilities. Now we will discuss that there are many different math games which are online available for and with free uses. So children can use these mathematics games, and teachers also can use these mathematics games in the classroom for the learning of mathematics to the students. Now we will discuss a brief history of technology in mathematics education, that how use of mathematics evolved in the history of mathematics education. In very old times, in 1650, the horn book was used to teaching mathematics. The horn book was like this, and the maths was done on this horn book. This was slightly like a slate. Next is मैजिक लैंटर्न. ये एक मैजिक लैंटर्न थी जो 1870 में इंट्रोड्यूस करवाई गई, और इसमें जो डिफरेंट मैथमेटिकल फीचर्स थे उनको यूज़ किया जाता था. The next one is 1880 and the slate was introduced, जो इस वक्त भी हमारे पास स्लेट की डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद हैं, बल्कि अब तो डिजिटल स्लेट्स भी मौजूद हैं. तो जो फर्स्ट वन स्लेट थी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1880.
एंड देन इन 1890 चॉक बोर्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ये स्लेट की बेस पर ही इसका साइज़ बड़ा किया गया और इसका यूज़ जो है वो एक्सपेंड किया गया था इन मैथमेटिक्स एजुकेशन। और चॉक बोर्ड के जो है उसको स्पेशली यूज़ किया गया फॉर मैथमेटिक्स लर्निंग, और सारे सब्जेक्ट्स के लिए बेसिकली चॉक बोर्ड को यूज़ किया गया, लेकिन इसका जो मैथमेटिक्स में जो इसका यूज़ था वो भी काफ़ी ज़्यादा रहा मैथ्स में। Then in 1925 film projector was introduced, and this was also used in teaching of mathematics. Then simultaneously in 1925 the radio was also introduced, and radio was also used in teaching of mathematics. Then in 1930 overhead projector was developed, and this was also used in teaching of mathematics. Then in 1940 mimeograph was introduced. Then in 1957 Skinner teaching machine was used, and 1958 educational television was introduced, and teaching of mathematics was also done by using educational television. Then in 1965 film strip viewers was introduced, and then 1970 the handheld calculator was introduced in the mathematics education, and this was basically first revolutionary step when calculator was introduced. Then in 1980 Plato computer was introduced. ये एडवांस्ड फॉर्म थी और फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड करवाया गया जो कंप्यूटर था, और 1980 में। और कंप्यूटर में फिर जो मैथमेटिक्स एजुकेशन है कंप्यूटर के यूज़ की वजह से इसमें एक बहुत रेवोल्यूशन आई। देन इन 1985 CD-ROM ड्राइव वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड इसके बाद जो है वो फिर मैथमेटिक्स एजुकेशन में जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जो भी कैलकुलेशंस थी वो रिकॉर्ड करके चलाना शुरू हुए कंप्यूटर पर। द नेक्स्ट ईरा वाज 1985, और यहाँ पर जो हैंड हेल्ड ग्राफिंग कैलकुलेटर था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। यानी ये थोड़ा सा जो इस वक्त हम जो मौजूद है हमारे पास शक्ल जिसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर कहते हैं, दिस वाज मच लाइक दैट, और ये उसकी इनिशियल फॉर्म थी। देन इन 1999 इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड। ये एक टेक्नोलॉजी में बहुत एक न्यू रेवोल्यूशन थी जिसमें इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए गए, और इसमें मैथमेटिक्स का एजुकेशन में इसका यूज़ जो है ये काफ़ी यूज़फुल रहा, और इसकी वजह से जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करने थे, और जो टीचिंग है वो स्पेशली जो टीचिंग छोटे बच्चों के लिए थी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई। देन इन 2005 आई क्लिकर वॉज यूज्ड, एंड ये जो सॉफ्ट बोर्ड है उसके साथ इसका यूज़ लिंक है। देन इन 2006 जो लैपटॉप वाज इंट्रोड्यूस्ड, और ये भी इसमें फिर जो बच्चों की गेम्स और जो मैथमेटिक्स और एजुकेशनल गेम्स थी वो भी इंट्रोड्यूस्ड थी। देन 2010 में एप्पल आईपैड आए, और उसके बाद जो है वो फिर एक टेक्नोलॉजी का एक आउटबर्स्ट था जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी इंट्रोड्यूस की गई जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड थी, और इन सारी चीज़ों का यूज़ जो है वो मैथमेटिक्स एजुकेशन में इक्वली गुड है। और जो भी टेक्नोलॉजी में नई चीज़ आती है वो बेसिकली मैथमेटिक्स के ऊपर ही बेस कर रही होती है, और सबसे ज़्यादा जो है उसका यूज़ मैथमेटिक्स एजुकेशन में ही किया जा सकता है। सो दिस वाज अ ब्रीफ टाइमलाइन जो कि हमने देखा कि हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई है, वन बाय वन जो है चीज़ें इंट्रोड्यूस होती गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, और उनका यूज़ जो है वो मैथमेटिक्स एजुकेशन में इंक्रीज़ होता गया है। हमने जितनी भी ये डिफरेंट टाइमलाइंस हमने डिस्कस की हैं, इसमें जस्ट आपको जो है वो ईयर्स के साथ जो इंस्ट्रूमेंट नेम्स हैं इनको रिमेंबर करना है, इनको याद करना है, और बाकी जो है वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। Now we will discuss the availability of technology has changed enormously during the last 20 to 30 years. आपने टाइमलाइन में भी देखा कि प्रीवियस जो 1990s के बाद जो है लाइक
काफ़ी ज़्यादा रैपिड चेंजेस आई हैं टेक्नोलॉजी में। उससे पहले काफ़ी जो है वो स्लो चेंजेस थी। बहुत रेयरली कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता था। लेकिन 1990s में टेक्नोलॉजी जो है उसकी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ रही है, और उसी तरह से उसने मैथमेटिक्स एजुकेशन को भी बहुत रैपिडली चेंज किया है। This broad definition of ICT includes such technologies as radio, television, video, DVDs, telephones, both fixed line and mobile phones, satellite systems, computer and network hardware and software, video conferencing, email and blogs, and digital games. तो ICT बेसिकली इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को का कॉम्बिनेशन है, इसके यूज़ का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें से कोई भी चीज़ जब हम यूज़ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम ICT यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज बेसिकली ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो कम्युनिकेशन भी इसके अंदर आती है, इंफॉर्मेशन भी आती है, और डिजिटल जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूज़ हो रही होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट बैरियर्स ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने अभी तक बहुत सारे इसके एडवांटेजेस, और हम इसको प्रैक्टिकली फेस भी करते हैं, देखते भी हैं कि बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन आज हम ये भी देखेंगे कि इसमें बैरियर्स कौन कौन से हैं जो कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में इनकाउंटर करते हैं। नॉट इनफ और लिमिटेड एक्सेस टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जो हमारी जो वर्ल्ड है ओवरऑल, उसमें जो ऐसी पॉपुलेशन जिनकी एक्सेसिबिलिटी है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ, वो कंपैरेटिवली बहुत कम है ऐसी पॉपुलेशन। लाइक मैक्सिमम जो है वो 10 to 20% लोग जो हैं उनको कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी है। अब जब कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी बड़ी लिमिटेड होगी तो टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो प्रोविज़न ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार फ्लंग एरियाज़ इज़ वेरी बिग लिमिटेशन इन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कहीं पर जाकर फिर हमें ये कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि तमाम जो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, उनमें मेक श्योर करें कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो मैक्सिमम अवेलेबल हो। लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी इन रिसोर्सेज को, क्योंकि कंपैरेटिवली ये कॉस्टली होते हैं इनका यूज़, तो ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर इनको प्रोवाइड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लैक ऑफ टाइम इन स्कूल स्केड्यूल फॉर प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग ICT। तो स्कूल टाइम जो है, स्कूल स्केड्यूल जो होता है वो काफ़ी टाइट होता है, क्योंकि उसमें वो काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट बुक बेस्ड भी होता है, और प्लस उनका सिलेबस बाउंड भी होता है, और टाइम लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं कि विद इन गिवन टाइम आपने अपना सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करवाना होता है। तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो चूँकि टाइम टेकिंग होता है, यानी अगर आप उसमें गेम्स वगैरह जैसे यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल गेम्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो टाइम टेकिंग होती हैं, और उसकी वजह से फिर किसी जगह पर आकर आपका जो सिलेबस है वो सफ़र कर रहा होता है, वो कंप्लीट नहीं हो पाता, और उसकी वजह से टीचर्स जो है वो एक अंडर प्रेशर में आ जाते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अभी तक पेंडिंग है, हमने इस चीज़ को कंप्लीट करना है। तो उनका सारा फोकस मैक्सिमम जो है वो सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर चला जाता है, बजाय इसके को टेक्नोलॉजी यूज़ के साथ, डिफरेंट इनोवेटिव मेथड्स के साथ वो बच्चों को पढ़ाएं मैथमेटिक्स, और ताकि उनकी लर्निंग जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो, अच्छी लर्निंग हो, बजाय इसके कि वो रोट मेमोराइज़ कर रहे हो, वो मैथ्स को कॉम्प्रीहेंड करें। तो ये टाइम लिमिटेशन काफ़ी बड़ी होती है, जिसकी वजह से मैथ्स जो है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी लिमिटेड होता है। The next barrier is lack of knowledge about ways to integrate ICT to enhance curriculum. So यहाँ पर इशू जो है वो थोड़ा सा टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में आ जाता है, या ऐसे प्रोग्राम्स जहाँ पे टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ICT बेस्ड नहीं होते। सारा जो हमारा फोकस होता है वो टीचिंग मेथड्स और इनकी इंटीग्रेशन पर होता है, लेकिन हाउ टू इंटीग्रेट ICT प्रैक्टिकली इन कंप्यूटर और मैथ्स में कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है, तो इसके बारे में बहुत कम ट्रेनिंग होती है टीचर्स की। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम कंप्यूटर बेस्ड जो हैं हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा, उनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनका यूज़ सिखाना चाहिए टीचर्स को।
सो यहाँ पर हम लेक करते हैं और इस वजह से जो है वो हमारी मैथमेटिक्स एजुकेशन सफ़र करती है, बल्कि ओवरऑल किसी भी सब्जेक्ट की जो एजुकेशन है वो अब काफ़ी ज़्यादा आईसीटी बेस्ड होती है, तो आईसीटी बेस्ड टीचर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। नॉट इनफ टीचर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आईसीटी प्रोजेक्ट्स, तो इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती टीचर्स को कि वो किस तरह से आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स क्लास में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और कैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा सकता है जो कि आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हों। नेक्स्ट है लैक ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल सपोर्ट फॉर आईसीटी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आईसीटी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि वो जस्ट आप टीचर्स को ट्रेनिंग के थ्रू सिखा दें और उसके बाद जो है वो उनका प्रैक्टिकल यूज़ जब उनको करना पड़ता है तो उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। यानी जब आप इसको प्रैक्टिकली जाकर स्कूल्स में करवाना होता है तो स्कूल्स के अंदर एक परमानेंट आईसीटी पर्सनल सपोर्ट मौजूद होनी चाहिए। अच्छे कंप्यूटर टीचर्स जो कि कंप्यूटर के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, किसी भी टीचर को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको कवर करने के लिए टीचर्स को सपोर्ट दें। और कोई भी नया सॉफ्टवेयर है, कोई भी एजुकेशनल गेम्स हैं उन या किसी भी तरह की डाउनलोडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको आईसीटी सपोर्ट जो है वो साथ साथ चाहिए होती है। चाहे आप कितने भी बड़े आईसीटी एक्सपर्ट बन जाएं टीचर्स, तो लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिकली यूज़ करना होता है आईसीटी को क्लास के अंदर तो उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत छोटे से प्रॉब्लम के ऊपर हम बहुत देर तक उसके साथ स्ट्रगल करते रहते हैं टीचर्स और उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। तो ऐसी चीज़ें जो हैं उसमें कंप्यूटर जो पर्सनल होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है और उनकी सपोर्ट के साथ ही आईसीटी को सक्सेसफुली क्लासरूम के अंदर यूज़ किया जा सकता है। Few more issues which can be discussed, like is the ability to calculate, manipulate and graph still important? यानी जब आप यूज़ कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी क्लासरूम में हायर ग्रेड्स के अंदर, तो हमने देखा है कि कैलकुलेटर जो होता है उसको जब हम यूज़ करते हैं तो जो हमारी मैनुअल कैलकुलेशंस होती हैं वो तकरीबन जो है वो अब उसका ख़त्म हो चुका है हायर ग्रेड्स के अंदर। तो क्या ये अब एक इशू है कि क्या हमें जो एबिलिटी टू कैलकुलेट है लोअर ग्रेड्स में उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि अब कैलकुलेटर्स इतने एडवांस्ड किस्म के आ गए हैं कि हर तरह की कैलकुलेशंस आप कंप्यूटर्स के ऊपर कर सकते हैं। तो जो मैनुअल कैलकुलेशंस हम सिखाते हैं बच्चों को लोअर ग्रेड्स में तो उसकी क्या हमें ज़रूरत है या नहीं है। और इस तरह से मैनिपुलेट हम जब करते हैं, मैनिपुलेशंस और ग्राफ वगैरह जब हम बनाते हैं तो वो भी अब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कंप्यूटर के ऊपर आप बहुत अच्छे हर तरह के ग्राफ्स बना सकते हैं। तो जो मैनुअल ग्राफ्स हम बनाते हैं उसकी शायद हमें इतनी बड़ी ज़रूरत अब नहीं है। शुड दे बी द फोकस ऑफ टीचिंग? सो द सिंपल आंसर इज़ नो। तो हमारी अब बेसिक जो मैथ्स शिफ्ट है इस वक्त, जो पैराडाइमिक शिफ्ट है मैथमेटिक्स एजुकेशन के अंदर, दैट इज़ टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी। तो मैक्सिमम हमें इन क्लासरूम्स को शिफ्ट करना है टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि अगर हम बहुत जो बेसिक मैथ्स है उसको क्विकली पास ऑन करना चाहिए, जल्दी बच्चों को पढ़ाकर टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि आप अपनी सराउंडिंग्स में इस वक्त भी देखेंगे कि जो बच्चे हैं जब उनके हाथ में टेक्नोलॉजी बेस्ड जो डिवाइसेस हैं जब उनके हाथ में होती हैं तो बड़ा क्विकली उन गेम्स को लर्न कर रहे होते हैं। और अब जो है वो ये है कि मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए, मैथमेटिक्स एजुकेशन को यूज़ करते हुए बहुत सी न्यू रेवोल्यूशंस लाई जा सकती हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। Technology in terms of conceptual development can help us create mental images, do explorations, finding patterns, but it cannot develop deductive reasoning and rigor or construct proofs and do more formal deductions. It has the potential, if not wisely used, to do the opposite. सो इसमें यह है कि टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी तक यूज़फुल होती है इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्चुअल डेवलपमेंट और इन क्रिएटिंग मेंटल इमेजेस एंड डूइंग मोर एंड मोर एक्सप्लोरेशंस एंड फाइंडिंग डिफरेंट पैटर्न्स। लेकिन टेक्नोलॉजी आपको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप करने में हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि आप ये चीज़ें तो डेवलप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, लेकिन उसके लिए उसके बाद उन चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ करना, वाइजली यूज़ करना और इन द फॉर्म ऑफ कि वो इस तरह से यूज़ हों कि उसकी बेस पर रीजनिंग डेवलप हो सके, ये टीचर्स का काम है। तो सिर्फ बच्चों को टेक्नोलॉजी को अगर आप सेपरेटली अलहदा से उनको अकेला छोड़ दें विदाउट एनी टीचर
तो वो उतनी ज़्यादा रीजनिंग डेवलप नहीं कर सकते। तो रीजनिंग बेसिकली डेवलप करना जो है ये टीचिंग का काम है। और अगर आप वाइजली टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे तो ये ऑपोजिट भी हो सकती है, यानी हो सकता है कि ये आपकी जितने भी मेंटल इमेजेस हैं वो प्रॉपर जो फॉर्म होने हैं उसकी बजाय अगर वो रॉन्गली परफॉर्म होना शुरू हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, उसका ऑपोजिट यूज़ हो जाएगा। टेक्नोलॉजी चेंजेस करिकुलम, असेसमेंट एंड व्हाट वी रिगार्ड एज इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल स्किल्स। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल हमारी स्किल्स हैं उनको उसमें अब बड़ा वास्ट चेंज आ रही है, और उसकी बेस पर जो है वो मैथ्स का करिकुलम और असेसमेंट के जो वेज़ हैं वो भी अब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गए हैं। लाइक मैथ्स की जो असेसमेंट होती है उसमें काफ़ी क्विकली यूज़ किया जा सकता है मैथमेटिक्स क्विज़ेस को जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, मैथमेटिकल गेम्स हैं जिनको असेसमेंट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। तो सारा जैसे हम कह सकते हैं कि सिनेरियो ही चेंज होता जा रहा है विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैथमेटिक्स एजुकेशन। Now, using technology to graph using CASS and stats might raise the question, why do we do maths? यानी अब हमारे पास मैथमेटिक्स जो एजुकेशन है उसमें टेक्नोलॉजी को जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे हम कास्ट को यूज़ करते हुए ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं, स्टैट्स वगैरह के थ्रू जो है वो हम काफ़ी सारा मैथ्स जो है उसको सॉल्व करते हैं, जैसे MS एक्सेल है या स्प्रेडशीट्स वगैरह जब हम बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन अगेन उसमें यही होता है कि वाई डू वी डू मैथ्स, यानी फिर हमें प्रैक्टिकली मैथ्स करने की ज़रूरत क्या है अगर हमने सारा का सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट करना है। If even your word processor can draw graphs, factorize, solve equations, integrate and differentiate, why is the focus of teaching and learning in many classes? ठीक है, तो अगर हमने ये सारा काम जो हमें सिंपल वर्ड प्रोसेसर भी कर देता है, तो वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर भी अब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ गई हुई हैं और उतने ज़्यादा उसके अंदर फीचर्स आ चुके हैं कि MS वर्ड में ही आप ग्राफ्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैथ्स के बहुत से सिंपल क्वेश्चंस जो है उनको आप MS वर्ड में ही बैठे बिठाए सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर एक इशू ये आता है कि हमें फिर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस की क्लासेस के अंदर क्या ज़रूरत है। टीचर्स एंड लर्नर्स विल आस्क व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैथ्स। ठीक है, जो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स एजुकेशन है जो कि हम टेक्स्ट बुक के थ्रू करते हैं, ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स मेथड्स यूज़ करते हुए हम करते हैं, तो इसके ऊपर जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा डिबेट है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में जो ट्रेडिशनल मैथ्स है उसकी शायद उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही। मैथमेटिक्स इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग एंड प्रोवाइडिंग रिलेशनशिप्स, फाइंडिंग पैटर्न्स and searching for structure and using these discoveries to solve real life problems। तो अब इसका आंसर देखें यह है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, जितना भी एफिशिएंट यूज़ हो सकता है उसका आप कर लेते हैं, तो बेसिकली जो मैनुअल मैथ्स है वो आपको ऐसी स्किल्स सिखाता है जो कि अभी तक आपको टेक्नोलॉजी नहीं सिखा सकती, लाइक इन फाइंडिंग रिलेशनशिप्स, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड सर्चिंग फॉर स्ट्रक्चर्स और डिस्कवरीज करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत सा हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल नहीं है। लाइक टेक्नोलॉजी, प्रोसीजरल नॉलेज इज़ जस्ट अ टूल टू सर्व दिस पर्पस। तो जिस तरह से जब आप प्रोसीजरल नॉलेज मीन्स कि जब आप मैथ्स को सॉल्व करवा रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी बेसिकली इसी पर्पस को सर्व कर रहा होता है कि आप डिफरेंट रिलेशनशिप्स और डिफरेंट पैटर्न्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इफ़ टेक्नोलॉजी ऑब्स्ट्रक्ट्स दिस एम, डोंट यूज़ इट। यानी अगर अब इसका सलूशन ये है कि जहाँ पर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो बच्चों को जो बेसिक मैथ्स का पर्पज़ है, जो बेसिक मैथ्स का एम है उससे हटा रहा है, यानी अगर आप बच्चों की रीजनिंग ही डेवलप नहीं हो रही टेक्नोलॉजी के यूज़ से, तो फिर आप उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ मत करें। इफ़ यूजिंग टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन दिस एंड्योर, यूज़ इट। अगर आपको जहाँ पर लगता है कि ये इन्हेंस कर रही है बच्चों की रीजनिंग स्किल्स को, प्रोसीजरल नॉलेज को, जो रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करना और स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करना, उस सब में बच्चों को हेल्प आउट कर रही है टेक्नोलॉजी, तो सिर्फ आप तब उसको यूज़ करें। So we will conclude that technology can improve teaching and learning, but just having technology doesn't automatically translate to better instructional outcomes. So briefly, बड़ा comprehensively हम इसको conclude ये कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हेल्प हमें करती है
इन सारी चीज़ों को डेवलप करने में। लेकिन अगर आप जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे, तो दैट डजेंट मीन कि आप ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर रहे हैं लर्निंग को। यूजिंग टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स अ साउंड कंटेंट नॉलेज। जब तक टीचर को, अब अगर मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो मैथमेटिक्स के कंटेंट पर जब तक आपको कमांड नहीं होगी तो सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते। एंड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैथ्स एंड द करिकुलम। तो ये आपको चाहिए है। जब तक आपको मैथ्स के करिकुलम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक आप मैथ्स के अच्छे टीचर नहीं बन सकते। नॉट एवरीथिंग दैट कैन बी डन विद टेक्नोलॉजी शुड बी डन। यूजिंग टेक्नोलॉजी इम्पोजेज द बर्डन ऑफ जजमेंट। ठीक है, तो सिर्फ हर चीज़ जो टेक्नोलॉजी को के थ्रू हो सकती है, हर एक चीज़ क्लासरूम के अंदर करवाने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी यूज हैज़ द पोटेंशियल टू मेक अ गुड टीचर इवन बेटर बट अ बैड टीचर इवन वर्स। टेक्नोलॉजी कैन नॉट इन्हेंस टीचिंग बाय इटसेल्फ। सो दिस इज़ अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि टीचर जो है वो अच्छा टीचर आपको टेक्नोलॉजी नहीं बना सकती। ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको हेल्प कर सकती है, आपके पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर सकती है, टीचर के पोटेंशियल को, उसको एक डिफरेंट वेज दे सकती है कि वो किस तरह से डिफरेंट वेज को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो अपनी मैथमेटिकल अपनी इसके जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको इन्हेंस कर सकता है। लेकिन इफ़ अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू आर अ बैड टीचर, ठीक है, आपको मैथमेटिक्स के कंटेंट नॉलेज के ऊपर कमांड नहीं है, या जो भी कोई आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके जो कंटेंट नॉलेज होता है अगर आपको उसके ऊपर कमांड नहीं है, तो फिर अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी को इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि चूंकि मुझे आता कुछ नहीं है और मैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करूँगा, डिफरेंट गेम्स वगैरह बच्चों को करवाऊँगा तो शायद मैं बहुत अच्छा टीचर हो जाऊँगा। नो, देयर इज़ अ बिग नो फॉर दैट। और अगर क्योंकि अगर आप बैड टीचर हैं तो टेक्नोलॉजी आपको एक वर्स टीचर में कन्वर्ट कर देगी। और अगर आपको कंटेंट नॉलेज के ऊपर कमांड है, बेसिक मैथ्स जो है वो आपका एक्सपर्ट एरिया है और उसके साथ आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो फिर ये आपकी टीचिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगी, आपके पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेगी और आपकी जो टीचिंग लर्निंग एबिलिटीज़ हैं आपकी क्लासरूम के अंदर उनको इन्हेंस करेगी और बच्चे जो हैं वो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो हमने ये देखा है कि जी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के आज हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं और इसके साथ ही जो है वो हमने डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हमने टेक्नोलॉजी के देखे सीखे हैं इन 2 लेक्चर्स के अंदर। उसमें हमने कंक्लूड ये किया है मैथ्स में कि टीचर जो टेक्नोलॉजी यूज़ है वो इन्हेंस होना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होना चाहिए, लेकिन वाइज यूज़ होना चाहिए, अप्रोप्रिएट यूज़ होना चाहिए। कंटेंट नॉलेज जो है बेसिक हमारा फोकस कंटेंट नॉलेज और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ही होनी चाहिए, इंस्टेड के हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा जो है वो इररेलेवेंट चीज़ों की तरफ चले जाएँ। थैंक यू वेरी मच।